قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو وضو کا صحیح طریقہ بتاتی ہے؟ خداوند عالم مردے کو حالت اسلام میں کتنے پانی سے غسل دینا واجب ہے؟ مردے کو اگر وضو کرنے والے کو پانی نہ ملے تو ظاہر ہے نہ وضو. ہمارے مکاتب ہیں، ان مکاتب میں ہم کسی بھی بچے کو مولوی نہیں بناتے ہیں، جی عالم بنانے کے لیے نہیں، عالمہ بنانے کے لیے مکاتب میں نہیں لاتے. ہم آپ کے کہنے سے جی. کیوں وشواس کریں؟ ہم بچوں کے بھی تو ٹرائی لینا چاہتے ہیں. ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کیا نمسکار، آداب، ست سری اکال. آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا، اور جنتا ونتا میں آپ کا پھر سے سواگت ہے. دوستوں، میں نے آپ کو کتنی ویڈیو دکھائی ہیں محرم کی، دیوالی، ہولی، دشہرہ، یہاں تک کہ میں آپ کو چرچ بھی دکھانے لے کے گیا ہوں. لیکن جینے کے لیے ہمیں صرف کھانے پینے کی ہی نہیں، سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، شکشا کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی شکشا تو سبھی لیتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ دھارمک شکشا کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ دھارمک شکشا کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ صرف ایک جینے کی راہ نہیں دکھاتے، ایک دوسرے کو سمجھنا بھی بتاتے ہیں. ہم لوگوں کو کھانے پینے کے طریقے بتاتے ہیں، رشتوں کا نبھاؤ بتاتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیں کیا صلہ ملے گا، ہمیں اس کا کیا پرنام ملے گا. ایسے ہی ہم دلی کے ایک یمنا وہار چھیتر پرانا مصطفی باس گلی نمبر 7 میں ایک مکتب اکبریہ، مکتب امامیہ اکبریہ کے نام سے یہاں موجود ہے. یہاں وہ تعلیم دی جاتی ہے، وہ شکشا دی جاتی ہے جہاں دور دور کے بچے اپنے پاس کے، اپنے قریب کے مدرسے چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. تھوڑے دن پہلے میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا تھا مدرسہ ہائے مدرسہ ہائے مدرسہ. میڈیا مدرسوں کے پیچھے دی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آتنک کا اڈا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں برائی سکھاتی ہیں، اور کیا نام یہ ایک طرح سے ٹریننگ دیتے ہیں. کیا آپ نے اچھے مدرسوں کی پہچان کی؟ نہیں کی. تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بار آپ اچھائی بھی دیکھیے. کوئی بھی دھرم برائی نہیں سکھاتا، ایک دوسرے کو لڑائی نہیں سکھاتا. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں اور آگے بڑھوں، اور میرے ماں باپ کا، میرے استاد کا، میرے گاؤں کا، میرے دیش کا آگے جا کے نام ہو. جی بات کریں گے ہم یہاں کے شکشک سے، دھرم گرو سے. جی آپ اپنا پریچے دیجیے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے اعجاز حسین، انسپکٹر تنظیم المکاتب لکھنؤ. ہم لوگ پورے ہندوستان میں جہاں تک بھی تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام مکتب امامیہ ہے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے مکاتب امامیہ ہیں، اس کے بانی اور اس کی بنیاد ڈالنے والے مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ تھے، جنہوں نے 18 اگست 1968 میں ایک ادارہ قائم کیا جس ادارے کا نام رکھا گیا تنظیم المکاتب. 5 مکاتب سے شروع ہونے والا یہ ادارہ الحمدللہ اس وقت بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر، کرگل، لیہ لداخ اور نوبراہ کی پہاڑیوں تک، وہاں سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، یو پی اور بہار کے میدانی علاقوں تک 1550 سے زیادہ مکاتب قائم کر چکا ہے. 1500 یعنی الحمدللہ. اور جن مکاتب میں 50,000 سے زیادہ یتیمان آل محمد، یا یوں کہوں کہ قوم کے بچے اور بچیاں، وہ بچے جو غربت کی بنا پر اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں جا سکتے یا تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان سب کے لیے یہ مکاتب قائم کیے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف چھوٹے چھوٹے ہمارے مکاتب ہی نہیں، بلکہ بڑی بچیوں کے لیے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، بڑے بچوں کے لیے مدرسہ ابو طالب، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کے لیے جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، جس میں پورے ہندوستان سے اس وقت 105 بچے موجود ہیں، جن کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز کی ذمہ داری، پڑھائی لکھائی تنظیم المکاتب برداشت کر رہا ہے. تنظیم المکاتب. اسی طرح جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب ہے، جس میں اس وقت 150 بچیاں ہیں، جن کا کھانا پینا، رہنا سہنا، پڑھائی لکھائی، سلائی کڑھائی، بنائی،
यहाँ तक कि हम अपनी बच्चियों को इतना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशाक बना देते हैं, इतना उन्हें कंप्लीट कर देते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में उन्हें कोई परेशानी ना होने पाए। ये जो हमारे मकातिब हैं, इन मकातिब में हम किसी भी बच्चे को मौलवी नहीं बनाते हैं जी, आलिम बनाने के लिए नहीं, आलिमा बनाने के लिए मकातिब में नहीं लाते, बल्कि सिर्फ हमारी कोशिश ये होती है, हमारा मकसद ये होता है कि कौम का बच्चा इतना दीन सीख ले, इतनी शरीयत सीख ले, इतना इस्लाम सीख ले कि उसे खुद ये पता हो कि शरीयत ने हमारे लिए हलाल क्या बनाया है और हराम क्या बनाया है। हम इन बच्चों को जीने का एक सलीक़ा बताते हैं, जीने का एक तरीक़ा बताते हैं कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमें सिर्फ खाना पीना सोना और मर जाना नहीं है, बल्कि सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हम अच्छी तालीम हासिल करें और लोगों को इंसानियत का पैगाम दें। ये हमारे मदारिस और मकातिब का मकसद हुआ करता है। जी, हम आपके कहने से क्यों विश्वास करें? जी, क्यों विश्वास करें? हम बच्चों के भी तो ट्राई लेना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि बच्चों की भी ट्राई ली जाए। क्या हम ले सकते हैं? बेशक हमारी तरफ से मुकम्मल आपको इजाज़त है कि आप ख़ुद चाहें तो ख़ुद बच्चों से सवालात करें, और अगर हमें इजाज़त दें तो हम बच्चों से सवाल करें, जैसा आप मुनासिब समझें। मैं सारे नाज़रीन को और अपने देखने सुनने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि तंज़ीमुल मकातिब वो इदारा है जो ऑफ़िसों में बैठ कर सिर्फ काम नहीं करता है, बल्कि तंज़ीमुल मकातिब एक ज़मीनी इदारा है, एक कौमी इदारा है जो कौम से जुड़ा हुआ है। अगर तंज़ीमुल मकातिब के ख़दमात का जायज़ा लेना है तो आपको ऑफ़िसों में नहीं जाना है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में घूम कर देखना है। जहाँ जहाँ तंज़ीमुल मकातिब के मकातिब पाए जाएंगे, आप किसी भी बच्चे को उठाकर हमारे सिलेबस यानी शरीयत के जो निसाब बयान किए गए हैं, जो क़वानीन हैं, जो बानी तंज़ीब और उनके रफ़क़ाए कार ने सिलेबस बच्चों की अक्ल और उनकी ज़हानत के तौर पर तैयार किया था, आप उससे सवाल करें। बच्चा आपको सही वज़ू करके दिखाएगा, सही गुस्ल का तरीक़ा बताएगा, सही तयम्मुम का तरीक़ा बताएगा, और यहाँ तक कि वो ये भी बताएगा कि हमें माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने हमसायों के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए। शबाना परवीन। शबाना परवीन किस दर्जे में पढ़ती हैं? दर्जा पंजुम। दर्जा पंजुम में पढ़ती हैं। ठीक। मुर्दे को हालत इस्लाम में कितने पानी से गुस्ल देना वाजिब है? मुर्दे को हालत इस्लाम में 3 पानी से गुस्ल देना वाजिब है। आब सिद्र, आब काफूर, आब खालिस। आब सिद्र मतलब कौन सी पानी? मतलब बेर की पत्ती कुचलकर पानी में मिला देना, उसे आब सिद्र कहते हैं। आब सिद्र हाँ। यानी बेर की पत्ती कुचल के पानी में मिला दी जाए। कितनी मिलाई जाएगी? ज़्यादा कि पानी मुज़ाफ ना हो। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्ची ने कि इतनी बेर की पत्ती कुचल के डाली जाएगी कि पानी मुज़ाफ ना होने पाए, इसलिए कि मुज़ाफ पानी से ना वज़ू सही हो सकता है और ना ही गुस्ल सही हो सकता है। और उसके बाद आब काफूर और तीसरे आब खालिस, ये 3 पानी से मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है। क्या नाम है आपका? एहसान ज़हरा। एहसान ज़हरा, किस मकतब में पढ़ती हैं आप? मकतब इमाम अकबरिया तंज़ीमुल मकातिब मुस्तफ़ाबाद दिल्ली 94। जी शाबाश। मुझे ये बताएं, अगर वज़ू करने वाले को पानी ना मिले तो जाहिर है ना वज़ू हो सकता है और ना ही गुस्ल हो सकता है, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा तो उससे वज़ू भी नहीं हो सकता, उससे गुस्ल भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तयम्मुम। तयम्मुम किया जाएगा। शाबाश। क्या आप अपने नाज़रीन को ये बता सकती हैं कि तयम्मुम किस किस चीज़ पर किया जाएगा? तयम्मुम मिट्टी, पत्थर और गर्दो गुब्बार पर किया जाता है, और अगर ये भी ना मिले तो गीली मिट्टी पर भी किया जा सकता है। शाबाश। क्या नाम है आपका? रोज़ी ज़हरा। रोज़ी ज़हरा। ज़हरा। किस दर्जे में पढ़ती हैं आप? दर्जा 4। दर्जे 4 में। हौसले के साथ बोलो बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि हम सब इस दुनिया में आते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमारे आने का मकसद क्या है? हमको अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया है? हमको अल्लाह ने इल्म हासिल करने के लिए और इबादत के लिए पैदा किया।
बच्ची का ये जवाब था, हमको अल्लाह ने इल्म हासिल करने के लिए और इबादत के लिए पैदा किया है। आइए नाजरीन, आप ये समझ रहे होंगे शायद मैंने इस बच्ची को याद करा दिया हो और ये बच्ची जवाब दे रही हो। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी बच्ची से हम करते हैं फिर, और वो हमारा क्वेश्चन है इस बच्ची से, कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जो वज़ू का सही तरीक़ा बताती है? खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतानिर रजीम से अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस सलात, जब तुम उठो नमाज को, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, धो लो अपने चेहरे को, वअयदीकुम इलल मराफ़िक़, और हाथों को कोहनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, मस करो अपने सर का और पाँव को काबैन तक। क्या नाम है आपका? सफ़ीना बतूल। सफ़ीना बतूल। ये बच्ची है सफ़ीना बतूल। आपके मकतब का क्या नाम है? मकतब इमाम अकबरिया तंजीमुल मकातिब मुस्तफ़ाबाद 90 दिल्ली 94। किस दर्जे में पढ़ती हैं? दर्जे चारूम। दर्जे चारूम में। हमारा सवाल ये है कि हम किस दीन के मानने वाले हैं? हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। क्या नाम है बेटा? बतूल फातिमा। बतूल फातिमा। मैं इस बच्ची से सवाल कर रहा हूँ कि हमें इस्लाम किससे मिला? हम इस्लाम हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। क्या नाम है बेटे? सानिया ज़हरा। आपके मकतब का नाम? मकतब इमाम अकबरिया तंजीमुल मकातिब मुस्तफ़ाबाद दिल्ली। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आज भी कोई इमाम हैं? जी हाँ, हमारे 12वें इमाम हज़रत मोहम्मद मेहदी आखिर ज़मां अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में हैं। अल्लाह। हम बचपन से यही नाम सुनते आए हैं, यही बात सुनते आए हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन उसके बाद जो लाइन है वो दिल को छू जाने वाली है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन ऐसी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, अगर सुनता है और उसके दिल में वतन की मोहब्बत है तो वो एक तरह से एक जज्बाती हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। बात हम धर्म की नहीं करेंगे, आप किसी भी धर्म से हैं, जब तक आप धार्मिक शिक्षा यानी दीनी तालीम नहीं देंगे तो बच्चा आपका कुछ नहीं समझ पाएगा, आपके इमोशन नहीं समझ पाएगा, आपके जज्बात नहीं समझ पाएगा, इंसानियत नहीं सीख पाएगा। और जीने के लिए इंसानियत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप किसी भी धर्म से आप अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा ज़रूर दीजिए, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी दीन, धर्म, मज़हब एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे से जलना और एक दूसरे से भिड़ना नहीं सिखाता है। आप अगर इसी धर्म से हैं या दूसरे धर्म से हैं, सबसे अच्छी दुनिया की 2 चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छा दान, सबसे अच्छा काम जो होता है वो 2 तरह का होता है, किसी की पढ़ाई में लगाना या फिर किसी की बीमारी में देना। दोस्तों, हम लोग कितना खर्च करते हैं ब्याह शादी में, पार्टी में, फिजूल खर्च करते हैं, यानी बेतहाशा, बेइंतहा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम लोग खर्च करते चले जाते हैं, घर बनाते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, और भी बहुत दुनिया के खर्चे हैं। हमने अगर कुछ कमाना है, ये तो ज़िंदगी के लिए है, अगर हमने कुछ नाम कमाना है ज़िंदगी में या फिर दुनिया में अपना नाम, अपनी याददाश्त ताज़ा रखनी है, लोगों के बीच में हमें अपनी मौजूदगी महसूस करानी है, तो हमें इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो डोनेशन से चलती हैं। पीछे से जो मोटे डोनेटर आते हैं, यानी जो बड़े डोनेटर हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। कहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ज़र्रा ज़र्रा करके पहाड़ बनता है। तो आप लोगों से सिर्फ मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को अगर इस संस्था को यानी इस इदारे को अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करना है, कोई भी सहायता देनी है, तो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर दिए गए नंबर पे आप ऑनलाइन कोई भी सहारा दे सकते हैं। आप सऊदी अरब रहते हैं, बाहर देश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, या फिर यहीं अपने मुल्क में रहते हैं, किसी भी तरह का, यानी आपका 1 रुपया बच्चे का फ्यूचर बनाने में बहुत काम आएगा। ये इदारे कुछ ऐसे होते हैं, दीनी धार्मिक तालीमें ऐसी होती हैं, धार्मिक शिक्षा ऐसी होती हैं जिसमें जहाँ कोई मूल नहीं होता,
जहाँ कोई कीमत नहीं होती। जिसने समझो शिक्षा की कीमत ले ली, उसने समझो इंसानियत को ख़रीद लिया। दोस्तों लेकिन यहाँ ये इदारा जो चलता है, यहाँ के बहुत खर्च होते हैं। आपको भी पता है, बिजली का, लाइट का, रहने का, सहने का, सब तरह का खर्च होता है। आप लोगों से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की अगर आप सहायता करना चाहें तो इस नंबर पे, यह नंबर दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दिया गया है। आप लोग ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं।